So yesterday we are discussing, or we have discussed about iron and steel industries. Isn't it or not? We have discussed iron and steel industries yesterday. Why it is called basic industries, why it is considered as an index. Consumption and production of steel is considered as an index of development. Why? So all these questions have already discussed in yesterday's class. Is it discussed or not? Yes, ma'am. Okay. So, and we have also discussed classification on the basis of raw material. So let us revise it again. Classification on the basis of raw material. How can industry classify on the basis of raw material? So your answer through chat box. और इसके बाद जिससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आकर वीडियो में आंसर देंगे, ठीक है ना? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. कम ऑन फास्ट, शो योर आंसर थ्रू चैट बॉक्स. ऐश्वर्या वेंस क्यों नहीं आ रहा है? यस, आर्यन सिंह, रितिका, राइट आंसर. श्वेता कुमारी, राइट आंसर. Srishti Kashyap is also right. Only 13 participants are there. Aman Kumar Seth is also given right answer. Yes, Aryan, Priya, Rishi Dubey. Now, next question is for Rishi Dubey. Open your video, Rishi Dubey, and tell me the answer. First, open your video, Rishi Dubey. Next question for Rishi Dubey. On the basis of raw material, industries are classified into two different types, mineral-based and agro-based. Now, your question for you, that what are the subdivision of agro-based industry? Agro-based industries further divided into? Agricultural agro-based, forest agro-based, animal agro-based. Very good, very good. Good, beta. Clapping for you. Okay, thank you, Rishi. Okay, now, next question is from Priya. Priya? Yes, ma'am. Yes, Priya, for you, my question is why iron and steel, why production and consumption of steel is regarded as an index of development? थोड़ा सा है explain करने वाला, इसीलिए तुमसे पूछे हैं. Yes, ma'am. Ma'am, production and consumption of iron and steel is regarded as the index for development because when it is consumed, it shows the living standard of the people. It shows the capacity of the people to buy. And also, as the product produced helps in this product produced in this industry helps in development of other industries also. Very good, बेटा, बहुत अच्छे. Yes, तो सब याद है ना? Production and consumption of steel. Good, Priya. Clapping for you, Priya. Production and consumption of steel is regarded as an index because it helps in developing our standard of living, adding more and more comfort in our life, as well as promote the industrialization of other sector also and promote the economic development in turn. Okay, good, Priya. Now next question from Sanya Kumari. दूसरा जो क्वेश्चन है वो सान्या के लिए है, कल हम बताए हैं. सान्या, सान्या आवाज सुन रही है? ओपन करो अपना वीडियो, सान्या.
Yes, Sanya. Am I audible or not? Yes, ma'am. Oh, Sanya. Yes. Now open your video, Sanya. Yesterday, I have explained about the company which is largest producer of steel in India. You have to name the company which is considered as the largest producer of steel in India. Which company is the largest producer of steel in Ma'am. India? SAIL is the largest producer of iron and steel in India. Very good. What is the full form of SAIL? Ma'am. ओके ओके ऋषि ऋषि दुबे से तो हो गया था. प्रियम राज. Yes, ma'am. हाँ, what is the full form of SAIL, बेटा? Full form of SAIL. Priyam Raj, come on the dash, open your video and then tell me. Yes, Rishi Dubey, correct answer. Yes, Priyam Raj. Ma'am, Steel Authority of India Limited. Very good, Priyam Raj. बहुत एकदम correct answer है बेटा. Priyam Raj, Steel Authority of India Limited. Now, my question is, which is the second most important iron and steel company of India? Ma'am, TISCO. TISCO. Okay, very good. चलो ठीक है. Thank you. Sanya has also given right answer. Now next questions from Piyush Raj. Piyush Raj of 10F. Piyush Raj, सामने आओ. Yes, ma'am. Open your video, बेटा. Yes. Yes, Piyush. आप बताइए what Yes, ma'am. factors favors the concentration of iron and steel industry at TISCO? Or what factors favors the development of TISCO, Tata Iron and Steel Company? Availability of raw material, ma'am. Good transportation system Yes. and सही good जा रहा है? communication system. हाँ, सब सही है. आगे. टाटा जी के द्वारा ये डेवलप किया गया है कैसे? जमशेदपुर में मैम रिवर के किनारे है तो वहाँ पर Which रॉ river? मटेरियल का अवेलेबिलिटी है. Which river provides water for TISCO plant? Which river? पता नहीं है मैम. It is स्वर्ण रेखा नदी, है ना? स्वर्ण रेखा नदी से पानी का सारा रिक्वायरमेंट वहां पे पूरा होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है बेटा कि कैपिटल. You know that iron and steel industry is capital intensive industry. It is considered as heavy industry. Yes, Investment is maximum, and that is in that investment is made by Jamshedji Tata. So capital is available from Jamshedji Tata, and other natural factors, geographical factors are available in nearby area. Thank you, beta. Thank you, Piyush Raj. Now next question is for विवेक मिश्रा. आ चुका है. यस, विवेक मिश्रा, आप आइए, वीडियो ओपन कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, विवेक मिश्रा. 1 by 1 आज हम एक एक से पूछेंगे. चैट बॉक्स में तो लिखोगे ही, साथ साथ अलग अलग से भी आंसर आपको देना है. विवेक मिश्रा फिर वेटिंग रूम में चला गया. ओके, सो आर्यन राज, आप आ जाइए.
आर्यन Yes, का- ma'am. हाँ, वीडियो ओपन करो बेटा। Yes, ma'am. अब बताओ, why most of the steel industries in India is concentrated or located in Chota Nagpur region? Most of the steel industry in India is concentrated or located in Chota Nagpur region because this region has high concentration of iron ore and bauxite, and cheap laborers from West Bengal, Odisha, Bihar, and Jharkhand is also present. And growing home market is a important factor. Uh, and the cost of raw materials is also cheaper and present in and it is present in proximity. Yes, very good. Aspas, you all know that iron and steel industry is heavy industry and it involve heavy transportational cost. So it is generally we are trying to concentrate or establish iron and steel industries where its raw material are easily available, because its raw material is also heavy and bulky in nature. So as Chota Nagpur plateau provides maximum facilities for development of iron and steel industry in this area, because iron ore, manganese ore is available in nearby area from Singhbhum, from Odisha, Keonjhar and Mayurbhanj of Odisha provide sufficient amount of iron ore and manganese ore. Singhbhum also provides sufficient amount of iron ore. Damodar, Kharkai river, Swarnarekha river provides sufficient water. As you all know that in steel industries maximum amount of water is also required. ठीक है ना, क्योंकि स्टील का भट्टी को जब ठंडा करना होता है तो पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है. दैट इज अवेलेबल. इट for getting more and more profit, this industry also provide cheap and skilled laborers, which is available from surrounding areas which are densely populated in nature, like Bihar, as Aryan Raj has already been told that Bihar, Jharkhand, Odisha provide sufficient cheap and skilled laborers in this part. Koila, coal is also available from Raniganj, Jharia, and all these things are required and sufficiently available in nearby area. And the environment is also, Dalmia Hills provide beautiful environment, and township is also developed in nearby area like Jamshedpur and other areas. Other township has also been developed for providing benefit to the workers working in this industry. So all these factors, this region is well developed with road network and rail network. So this is helpful in concentration and development of Tata Iron and Steel Company. Presence of nearby Kolkata port is also very much important for export and import facilities, for providing export and import facility. So is that clear? ओके विवेक मिश्रा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? व्हाई इट इज कॉल्ड हेवी इंडस्ट्री, व्हाई इट इज as act as an index for development, why it is called basic industry? So if you are having any problem in this, then ask. तब हम लोग एग्रो बेस्ड पे इसके बाद चलेंगे. Other mineral based industries are chemical industries, aluminum industries, ठीक है ना, fertilizer industry, ये सब आपको पढ़ना है other mineral based industries में. मैम तो सिर्फ छोटा नागपुर ही को क्यों प्लेटियो, मतलब रीजन उसमें मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ, और कोई मतलब सिटी को डेवलप नहीं कर सकता है सरकार यहाँ का? रुको, आर्यन सिंह एंड आर्यन राज दोनों का क्वेश्चन अभी हम देख लिए हैं, बताते हैं, पहले इसका सुन ले. हाँ, क्या पूछ रही थी कि छोटा नागपुर रीजन ही क्यों? देखो, कोई भी हम कोई नया जगह में ऐसे ही तो शुरू नहीं कर देते हैं. When we try to develop any industries, we must
we must try to know about the favorable factors. Favorable factors are taken as consideration for developing any industries. हमको इंडस्ट्री डेवलप करना है और पता चला कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो अनफेवरेबल है, हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिए और सरकार उसको परमिशन ही नहीं दे रही है, तो क्या ये फेवरेबल होगा? नो मैम। नहीं होगा। अच्छा, मान लो कि हम कहीं भी ऐसे ही उठे और जाकर इन्वेस्ट करके पैसा फेंक तो नहीं सकते हैं, देखेंगे कि कहाँ से हमारे पास उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल, इसके बारे में भी हमारा सोचना हमारा काम है। जब वो सब अरेंज हो जाएगा, सारी प्लानिंग हो जाएगी, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब शुरुआती दौर में हमारा फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज था टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि 1907 में सेटअप किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। और जब ये इन्होंने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया तो वो सारा कुछ सर्वे करके प्लानिंग करके बैठे थे कि भाई छोटा नागपुर रीजन में ही आता है तुम्हारा सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर, ठीक है ना, और दुर्ग, बस्तर, ये सब उस एरिया में ही आता है जहां पर से हमको आयरन और मैग्नीज और कोकिंग कोल, और आपका सेंट्रल हाईलैंड का जो आपका एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया, वहां पर से लाइमस्टोन, रानीगंज, झरिया, ये सब से कोल, सारा कुछ अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, कई सारे ये से, और आपका कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर्स अवेलेबल था, डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसा कि आर्यन राज बताया कि होम मार्केट इज ऑल्सो, डेवलपिंग होम मार्केट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सराउंडिंग एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो इजिली हम उसको कंज्यूम, मतलब कंजम्पशन होगा, उसका डिमांड रहेगा, क्योंकि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं प्रोडक्ट का डिमांड भी ज्यादा होगा। तो चीप एंड स्किल लेवल, तो यहाँ पे फेवरेबल फैक्टर्स ओवरवेग अनफेवरेबल फैक्टर्स। अनफेवरेबल फैक्टर्स के कंपैरिजन में फेवरेबल फैक्टर्स ज्यादा हैं, which make the industries profitable in nature. That's why in first stage of development this region is selected. इसके बाद देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे अदर एरिया का डेवलपमेंट होने लगा, अदर सेक्टर में डेवलपमेंट होने लगा, अदर इंडस्ट्रीज का, तो वहाँ दूसरे इंडस्ट्री का सक्सेस से भी फिर धीरे धीरे हम सेटअप करने लगे। लेकिन फर्स्ट फेज में वैसे ही डेवलप किया गया, जहाँ पे फेवरेबल फैक्टर्स इन कंपैरिजन टू अनफेवरेबल फैक्टर्स ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटीज था, गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल था। हम इंडिपेंडेंस के बाद फॉर डेवलपिंग आवर कंट्री इन ए फास्ट रेट वी रिक्वायर टू डेवलप आवर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन development of country is not possible. So for developing industry we need to develop iron and steel industry, and maximum facilities are available in Chota Nagpur plateau region. So we started the settlement of industries in these areas at primary level, ठीक है ना। After that other sectors are also known for the development of iron and steel industry. other areas में भी धीरे धीरे करके सेटअप किया गया। हाँ, अभी कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। देखो बेटा, मिनी स्टील प्लांट में क्या है कि जो भी छोटे छोटे टूल्स वगैरह हैं वो स्क्रैप आयरन ये सब से जो आपका बन सकता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में लार्ज स्केल में मशीनरी के लिए जो रिक्वायर्ड है, जिसको या फिर क्रूड स्टील, ये सब का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करता है, जो मशीनरी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। मिनी स्टील प्लांट में छोटे छोटे यूटेंसिल्स के प्रोडक्ट, उस तरह का जो चीज है वो लोकल मार्केट को फिट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। मिनी स्टील प्लांट में इन्वेस्टमेंट कम होता है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। मिनी स्टील प्लांट जो है लोकल नीड्स को पूरा करता है, लोकल एरिया में उसका मार्केटिंग होता है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मार्केटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है, ग्लोबल लेवल पर होता है। इससे पहले भी कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछे थे, एक बार फिर से जरा सा हमको रिमाइंड कराओ, क्या क्वेश्चन था? आर्यन राज का भी कुछ क्वेश्चन था। यस, आर्यन राज का क्वेश्चन है। हाँ, बता रहे हैं भट्टी में आयरन को पिघलाने के लिए आपका कोल का कोकिंग कोल रिक्वायर्ड होता है बेटा,
ठीक है ना, जब तक कि हम आयरन को ये करेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। बैगेज तो है आपका शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, गन्ना चूसने के बाद जो सिट्ठी बच जाता है उसको कहते हैं बैगेज। समझ गए आर्यन सिंह? कोल का यूज एज ए रॉ मटेरियल भी आपका है स्टील मेकिंग में, विवेक मिश्रा। और जो आयरन ओर का जो भट्टी वगैरह होता है वहां पे भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। बिना पिघलाए हुए हम और जो मिक्सिंग होता है आपका आयरन और मैंगनीज और लाइमस्टोन और उसके बाद स्टील मेकिंग प्रोसेस में, ये सब में कोल का यूज होता है विवेक। अब आ गया आर्यन राज का क्वेश्चन कि इज एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर इज बेनिफिशियल। फर्स्ट स्टेज में when just after independence we are not having sufficient technology, we are not having sufficient well skilled and trained laborers on that case, and we require development, we require to satisfy the basic needs of the people. Before independence we are facing many droughts and many natural calamities, and that badly affected the population of India. And our colonial period also, our imperialistic ambitions of colonial countries also badly affect our country and our people. So during that time, just after independence, due to sufficient availability of iron ore, export of iron ore, as it is in great demand because industrial revolution had already taken place in different part of Europe and America. So during that time there is a great requirement of iron ore in these developed nations, and we are at developing stage and we need foreign exchange for satisfying the needs of the people or for doing development from root level. So during that time export of iron ore is important because that helps in earning foreign exchange, which is in great demand during that time for other development, for agricultural development, for satisfying basic needs. But nowadays situation can be changed. ठीक है? Now we are developing at fast rate, and as you know that iron and steel industry is very important. If we export, शुरू में हमारा 75% एक्सपोर्ट करते थे और अभी भी अगर करते रहे इन द सेम मैनर, देन वी मे classify ourselves in the category of big importer. So in present scenario we need to reduce the direct export of iron ore so that maximum development can be taken place within our home country, and by producing some products by using iron ore, we can export that product and can earn comparatively higher amount of foreign exchange than the export of iron ore. So in present scenario, we need to reduce our direct export of iron ore. Aryan Raj, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, और अभी बीच बीच में बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब फिर से पूछो। एक को बता रहे हैं तो पहले वो सुन लो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट कोई और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। आर्यन सिंह का बैगेज क्लियर हो गया, विवेक मिश्रा का कोल का यूज क्लियर हो गया। कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, विवेक मिश्रा, ठीक है ना, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिसिटी टू आवर स्टील प्लांट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील? स्टील में देखो सबसे ज्यादा तुम्हारा आयरन ओर होता है। बैगेज कहते हैं, बैगेज इज द नेम गिवन टू द क्या कहते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज में आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, क्या कहते हैं, जूस ऑफ शुगर, द रिमेन्स which is available after the extraction of juice, sugar juice, the remains are called baggage. सिट्ठी जो होता है, गन्ने का सिट्ठी, शुगर केन से शुगर जूस निकालने के बाद जो सिट्ठी बच जाता है उसको बैगेज कहते हैं। हाँ, अभी और क्या क्वेश्चन था विवेक मिश्रा? If we have sufficient iron ore and also exporting it, then why we are importing it from other countries? अरे भाई, for placifying our country in the category of developed nation,
we have to increase the rate of industrialization, and you all know that iron steel industry is basic industry. ये अलग बात है कि अभी तक हम 25% 30% आयरन ओर ही कंट्री का जो है यूज कर रहे हैं, बट वी आर हैविंग ह्यूज अपॉर्चुनिटी, वी आर हैविंग ह्यूज potential to use iron ore for developing our steel industries. As we develop steel industry in fast rate, its consumption is increasing, its production is increasing, and development of other industries also increases, which contribute in placifying our country in the category of developed nation. और हम लोग कर भी रहे हैं तेजी से, ठीक है ना। और यही कारण है कि अभी हम विश्व का लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा होम मार्केट में हमारे पास आयरन ओर सफिशिएंटली अवेलेबल है। तो हम अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दें, स्टील बनाकर एक्सपोर्ट करें, तो दाम किसका ज्यादा मिलेगा, आयरन ओर का या स्टील का? अभी जो पूछा था क्वेश्चन, अभिजीत पूछा था, वो बताएगा किसका दाम ज्यादा मिलेगा, आयरन ओर का या स्टील मैम का? स्टील का। हाँ तो मैम हम स्टील का। हाँ तो डायरेक्टली आयरन ओर एक्सपोर्ट करना ज्यादा फेवरेबल होगा या स्टील एक्सपोर्ट करना फेवरेबल होगा? मैम स्टील। हाँ तो बस जरूरी है कि हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करें, लोगों को, हमारे यहाँ वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सो इनको डेवलप करके हम अपना चीज अपने घर में ही उसको डेवलप करके अगर बेचेंगे तो दैट प्रोवाइड मोर प्रॉफिट, दैट प्रोवाइड मोर फॉरेन एक्सचेंज, एंड दैट हेल्प्स इन फास्टेन आवर industrial development and contribute in placifying our country in the category of developed nation of the world. तो इसीलिए अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, सो दैट इज नॉट नेगेटिव, दैट मे बी पॉजिटिव अगर हम उसका बाई प्रोडक्ट। अभी देखो जापान की स्थिति, जापान क्या करता है, हमारे स्टील इंडस्ट्री से जो स्क्रैप आयरन निकलता है, स्क्रैप आयरन समझ गए ना, वेस्ट प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट जनरेट होता है, जैसे कि आयरन और ये का छिलका टुकड़ा, ये सब उसको हमारे यहाँ से सस्ते दाम पे खरीद लेता है और उससे हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाकर हम ही को बेच देता है, इंडिया को ही। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, वो इंडिया को ही बेच देता है और कई गुना ज्यादा दाम पर। तो अगर हम अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें और उस तरीके से उसका यूज करके हम भी वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना। तो जरूरी है सबसे फर्स्ट फेज में कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, 100% लिटरेसी इंश्योर करें और अपना रिसोर्स अपने यहाँ यूज करके हम फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटर अगर करेंगे, उस समय फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में वैल्यू एडिशन करके अगर एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस। यस, और किसी का कुछ क्वेश्चन था? और कोई एक आध दो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर से पूछ लो। एक ही किसी का क्वेश्चन हमारा बार बार स्किप हो जा रहा है। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड रिलेटेड टू आयरन स्टील इंडस्ट्री? किसी को कुछ पूछना है? किसी और का भी कुछ क्वेश्चन था, हम ठीक से देख नहीं पाए, बताओ फिर से। ओके, नाउ अभी तो सबको बहुत कुछ क्लियर है अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एंड वी आर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल for developing these industries and contributing fast rate of industrialization in our country. Now come to the some agro-based industry. Among agro-based industry, which industry has got the unique position in industrial sector? Name the industry which occupy the unique position in industrial sector. Yes, Aryan Raj correct. Aryan Singh is also correct. Ritika Kumari is also correct. Abhijit is also correct. Anurag Kumar Singh is also correct. Priyam Raj is also correct. No, Aman Kumar Seth, wrong answer beta.
I am asking about agro-based industry. I am asking about agro-based industry. Which industry has got its unique position? Yes, it is textile industry, cotton textile industry. Why cotton textile industry is considered as the most, or textile industry is considered as the most important industry for India? अच्छा विवेक मिश्रा, इससे पहले और भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन था आयरन स्टील इंडस्ट्री से? नो मैम। अच्छा चलो अभी बताओ, why cotton textile industry or textile industries are or occupy unique position in industrialization of the country? Yes, anyone? क्वेश्चन आता है Because it is self-reliant and complete the value chain. यस ठीक है, अभिजीत का ठीक है, अमन कुमार सेठ, योर आंसर इज नॉट, यस यस यस, आर्यन राज इज करेक्ट, अनुराग कुमार सिंह इज आल्सो करेक्ट, हाँ यस, अदिति वर्मा इज आल्सो करेक्ट, आर्यन सिंह इज आल्सो करेक्ट, वेरी गुड. So iron and steel, cotton textile industries occupy unique position in industrial development because it is complete in its value chain. Processing is done at a different level, and each and every level create huge job opportunity for the people. Next one, and in this way it provide large scale employment opportunity for the people just after agriculture. Agriculture के बाद agro based industries के रूप में ये large scale employment opportunity provide करता है as processing is done on several level. इसके अलावा our spindles, which is centralized in nature, is very famous throughout the world, and our yarn is in great demand throughout the world, and with the export of yarn we also earn lot of foreign exchange. So in this way this industry is also a big foreign exchange earner industries. It directly contribute 4% to GDP. अरे रुको, one by one पूछोगे. It directly contribute 4% to GDP and 14% industrial raw material, generate large scale employment opportunity from root level. आपका ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आपका प्रोसेसिंग होता है टेक्सटाइल का, जैसे बेल्स बनाना है ना, रेशा को सेपरेट करना, बेल्स बनाना, और स्पिनिंग मिल्स में कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में उसका यूज करना, और खादी उद्योग के रूप में in the form of cottage industry, जब हम इसको टेक्सटाइल को डेवलप करते हैं in the form of cottage industry, तो that provide employment from root level and contribute the development from root level. employment देता है and development root level से contribute करता है. large scale industries के रूप में भी the product of cotton textile is in great demand, and India is one of the this cotton textile industry is one of the indigenous industries of India. ठीक है ना, बेसिकली कॉटन जो है वो इंडिया का इंडिजेनस प्लांट है, ओरिजिनल प्लांट है, यहीं से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में गया. तो इंडिया का जो कॉटन है, यहाँ का जो यार्न है, यहाँ का प्रोडक्ट है, दैट इज इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड हमारे जो हम वी आर स्किल्ड फॉर डेवलपिंग टेक्सटाइल in our home, for our home market and for international market. So in this way textile industry is important. फिर से सुनो point why it got unique position, because it directly contribute 4% to GDP, it contribute 14% for industrial production, it is complete in its value chain. कभी कोई पूछा था आर्यन सिंह, value chain का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होता है तो ऐसा नहीं स्टील के जैसा कि आयरन और मैंगनीज और कोकिंग कोल सबको मिलाए और लाइमस्टोन का यूज किए एक्सट्रैक्शन के लिए और स्टील बनाए अलग अलग रेशियो में मिलाकर, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किए. यहाँ पर क्या है
कि पहले जैसे ही कपास का उत्पादन हुआ, कपास का रेशा को निकालकर उसको पानी में डुबोकर छोड़ दिया जाता है, लंबे समय के लिए फूलता है। उसके बाद उसका जो फाइबर है उसको सेपरेट किया जाता है रेशा को, फिर उसको सेपरेट करने में लेबरर्स लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। उसके बाद उसका बेल्स बनाया गया, जैसे ऊन का गोला बनता है वैसे उसका बनता है। उसके बाद उसको स्पिनिंग मिल्स में लाया गया और वहां पे यार्न डेवलप किया गया। यार्न को फिर आपका क्या कहते हैं, कलर भी किया गया या पहले बुना गया, वीविंग सेक्टर में लाया गया। वीविंग सेक्टर में आपका जो तैयार हुआ क्लोथ्स, उसको फिर डाइंग सेक्टर में ले जाया गया। उसके बाद फिर प्रिंटिंग किया गया, ग्राफिक डिजाइनिंग किया गया। उसके बाद उसको कई तरह का फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया गया, ड्रेस मटेरियल, सूटिंग, सेटिंग्स, ऑजरी, तो देख रहे हैं। और उसके बाद फिर उसको रेडीमेड गारमेंट में। तो कितने लेवल पर इसका प्रोसेसिंग हुआ, ईच एंड एवरी लेवल, यही है कंप्लीट इन वैल्यू चेन। हर काम अपने ही जगह में हो रहा है और हर काम में आपका लेबरर्स एम्प्लॉयड है। एक तो प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, उसका दाम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरी ओर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट तक आते आते अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और हर लेवल पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये है कंप्लीट इन वैल्यू चेन। आर्यन सिंह पूछा था ये क्वेश्चन शायद। अभी एक का क्वेश्चन था इंजीनियरिंग वर्क में। देखो अभी हम बताए ना ग्राफिक डिजाइनिंग, अभी ग्राफिक डिजाइनर का नाम सुने हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में उसकी पढ़ाई की जाती है, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है ना। और वो ग्राफिक डिजाइनर जो है कि हर मटेरियल को किस तरीके से कंबाइंड करके क्या डिजाइनिंग करेंगे, किस तरह का हम उसका यूज करेंगे, वो उसमें बताया जाता है। तो इस तरीके से ये इंजीनियरिंग वर्क भी इसमें रिक्वायर्ड है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बोला था कि टिस्को क्यों, टिस्को मतलब कि टाटा जी के द्वारा सेटअप किया गया था, इसलिए टी फॉर टाटा और आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, टिस्को, और सीओ फॉर कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, द कंपनी विच इज सेटअप बाय जमशेदपुर टाटा, ठीक है ना। वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है टिस्को। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी उस समय कुछ कुछ लोगों के पास ही था, जिसमें कि जमशेद जी टाटा भी थे। उतना कैपिटल उनके पास था कि वो सेटअप करके, और आज भी देखोगे कि अभी देखो ना टाटा ग्रुप खरीदा है ना किसको, एयरक्राफ्ट में मर्जर हुआ है ना टाटा में, और उसके बाद देखो उसका डेवलपमेंट कितना, हाँ एयर इंडिया का मर्जर हुआ है। तो आज भी उनका जो मेहनत है वो अपना पोजीशन बनाए हुए है। एयर इंडिया का मर्जर हुआ है ना, तो उस समय भी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इन्हीं के पास था, इसीलिए इनके द्वारा ओपन किया गया कंपनी को, टिस्को का नाम दिया गया। आजकल टाटा आयरन स्टील, टाटा मार्का भी एकदम फेमस है ना, कि टाटा का मार्क है लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सब तरीके से सही है, हम लोग खरीदते हैं